साथियों, इसी के साथ हमारे बीच में एक छोटी बच्ची समृद्धि भारती, वो हमारे बीच में है। मैं उनको बुलाता हूं और उनके लिए समय निर्धारित है 5 मिनट। Good evening, all in all present here. I, Samriddhi Bharti, daughter of Mr. Praveen Kumar Bharti, is going to deliver a speech. Like as we all know that 14th April is being celebrated as the Ambedkar Jayanti or Bhim Jayanti, which is his birthday. Which is the birth date of former Minister of Law Justice of India, Dr. Bhimrao Ambedkar. He was an Indian jurist, economist, and a Dalit leader who headed the committee drafting the Constitution of India from the Constituent Debate. Served as Law and Justice Minister in the first cabinet of Jawaharlal Nehru ji, and also he inspired the Dalit Buddhist movement after renouncing Hinduism. He was born into a Dalit Mahar family of Western India. He was a boy humiliated by his school fellows. Further, he studied at the universities in the US, Britain and France. Coming back to India, he soon established his leadership among Dalits, founded several journals on their behalf and succeeded in obtaining special representation from them in the Legislative Council of the government. He passionately believed in the individual freedom and criticized caste society. His accusation of Hinduism as being the foundation of the caste system and made him controversial and unpopular among Hindus. His vision of society is that people should live together in order of social stability and individual dignity in the human institution. He believed that culture must not be a monarchy, but a dynamic force that creates a desirable atmosphere of freedom and fraternity, democratic law and social economic equality. Columbia University teaches his biography, but few in India have even read it. A casteist and ideological bias had assured that Mahatma Gandhiji's autobiography is celebrated worldwide, but Ambedkarji's memory is hardly known. Now here comes a very controversial episode of his life, the Hindu Code Bill. Today in Dalit history, we explore in depth the features of the Hindu Code Bill and the reactions to the introduction. This bill was introduced in the Parliament on 1st August 1946 but was not acted upon. Subsequent to independence, it was reintroduced by the Law Minister of India, Dr. B.R. Ambedkar in the Constituent Assembly on 11th April 1947. His major concern for women's status has been reflected in the Code Bill. He has even remarked that his work on the Hindu Code Bill would be as important as the work on the Indian Constitution itself. Essentially, those in Parliament who opposed the bill were mainly men, largely from Nehru's own Congress party. They believed that the Code Bills would institute reform that strayed too far away from the classical Hindu social order and were too radical. However, the bills were defeated against. In the assembly, he resigned. In a letter which he released to the press that his decision was largely based on the treatment and had been accorded to the Hindu Code Bill, as well as the administration's inability to get it passed. In 1955-56, they succeeded in passing 4 Hindu Code Bills, which included the Hindu Marriage Act, the Hindu Succession Act, the Hindu Minority and Guardianship Act, and the Hindu Adoption and Maintenance Act. Despite all this, he was a true social reformer and organized various movements such as Dalit Buddhist movement and anti-caste movement and many more. He contributed a lot to Indian law and education. He was also awarded
the Bharat Ratna Award in April 1990 and also the B.R. Ambedkar National Award or the Dr. Ambedkar National Award for Social Understanding and the Upliftment of Weaker Sections. It is a national award that is presented by the Government of India in honor of Ambedkar ji. He was a driven man. Although his life was tragically cut short, yet he accomplished things in his life. Though his upbringing presented many challenges, he went on become a great man who wasn't afraid to stand up for what he truly believed in. Thank you sir. थैंक यू सुमन जी। हमारे बीच में एक मेरठ के जाने माने कवि का हमको कहा गया था, तो हमने उनको निमंत्रित कर दिया है, साथ ही राम गोपाल भाटिया जी। और मैं उनसे कहूँगा कि बिल्कुल सूक्ष्म में, टाइम नहीं है, बिल्कुल सूक्ष्म में अपनी बात कह दें, 2-3 मिनट। ये नमन करता हूँ जिनकी याद में आज कार्यक्रम हो रहा है, और एक कविता पढ़ता हूँ उनके माइंड में 2-3 मिनट में पढ़ने की कोशिश करूँ। प्रश्न है द्रोण से एकलव्यों का ये, आज भी एकलव्य है, आज भी द्रोण। प्रश्न है द्रोण से एकलव्यों का ये, जो तुम्हारा है वो क्यों हमारा नहीं। वक्त की दौड़ में सबसे आगे थे तुम, वक्त की दौड़ में सबसे आगे थे तुम, जो थे पीछे उन्हें क्यों पुकारा नहीं। प्रश्न है द्रोण से, और बंद देखिए कि हमारा समस्या क्या है। धर्म की आड़ में वर्ण के नाम पर अंधविश्वास लोगों में पलते रहे। धर्म के नाम पर, वर्ण के नाम पर अंधविश्वास सदियों से पलते रहे। भाग्य दुर्भाग्य तो देव का काम है, कह के निर्दोष लोगों को छलते रहे। भाग्य दुर्भाग्य तो देव के काम है, कह के निर्दोष लोगों को छलते रहे। धर्म ग्रंथों को सबने पढ़ा तो बहुत, धर्म ग्रंथों को सबने पढ़ा तो बहुत, किंतु दिल में किसी ने उतारा नहीं। प्रश्न है द्रोण से, और हम गुलाम क्यों हुए, एक बंदी से। साम्राज्यों की बेतुकी होड़ में देश के नक्शे बनते बिगड़ते रहे। युद्ध लड़ना था जब दुश्मनों से हमें, हम तो आपस में ही युद्ध लड़ते रहे। युद्ध लड़ना था जब दुश्मनों से हमें, हम तो आपस में ही युद्ध लड़ते रहे। बुद्ध गांधी हूँ मैं कबीरा भी हूँ। बुद्ध गांधी हूँ मैं कबीरा भी हूँ। थक गया हूँ बहुत किंतु हारा नहीं, है यही दोस्त। अगला बंदे के दोस्तों, ये व्यथा है
जिसको पढ़ना तो क्या सोचना भी मना, वो भला दूर तक सोचता भी तो क्या। बेड़ियां पाँव में लेके चलता रहा, मंजिलों पर भला पहुंचता भी तो क्या। आत्मसम्मान का जिसको ना हो पता, आत्मसम्मान का उसको क्या है पता। जिसने अपमान का पल गुजारा नहीं, है यही प्रश्न हम तो करें द्रोण से। अंतिम क्या पंक्ति है? चाहे जो वर्ण हो, क्षेत्र भाषा कोई, एकता के लिए हर अहम छोड़ दो। चाहे कोई वर्ण हो, क्षेत्र भाषा कोई, एकता के लिए हर अहम छोड़ दो। भारती के लिए हम सभी एक हैं, जातीय श्रेष्ठता का भ्रम तोड़ दो। भारती के लिए हम सभी एक हैं, जातीय श्रेष्ठता का भ्रम तोड़ दो। बांट कर खाएं सब जो भी हमको मिले, बांट कर खाएं सब जो भी हमको मिले। वक्त की मांग है कोई नारा नहीं, प्रश्न है द्रोण से एकलव्यों का ये। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। इससे पेश करके अब उनको सुने जिनको सुनने के लिए हम लोग यहाँ आतुर भी हैं और बैठे हुए हैं। तो मैं, लेकिन ये मुनासिब नहीं होगा कि अगर किसी हमारे साथी ने अपनी तैयारी की हो, लेकिन हमने ज़बरदस्ती आज की वक्त की नज़ाकत को देखते हुए उन्हें संचालन का काम सौंप दिया हो, तो क्या उनके विचार ना सुने जाएं? इसलिए मैं चाहूँगा कि हमारे बीच में जो हमारे साथी अब तक संचालन कर रहे थे, भाई मनीष त्यागी जी से मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो भी 5 मिनट में आज के इस परिप्रेक्ष्य में अपना संबोधन व्यक्त करें। उसके पश्चात फिर हमारे कोड़ावाल साहब और प्रोफेसर रतनलाल जी हैं। उसके बाद फिर हम और आप साथ में बैठ करके कुछ जलपान करेंगे। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं, मेहरबानी करके तशरीफ रखें सब लोग। धन्यवाद। हो गई पीठ पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलने। साथियों, आज हम बाबा भीमराव अम्बेडकर को एक दिन पहले, उनके जन्मदिन के एक दिन पहले सेलिब्रेट कर रहे हैं, और हम कुछ बखेड़ा खड़ा करना नहीं चाहते। हम समाज को ये बताना चाहते हैं, हम अधिवक्ता हैं, हमारा ये धर्म है, हमारा ये कर्तव्य है कि तो उनके अम्बेडकर साहब के विचारों को जनता के बीच में लाएं, उनके बारे में जानें। उन्होंने कैसे संविधान की उन्होंने कल्पना की थी, कैसे समाज की कल्पना की थी, क्या वो समाज बना, क्या वो सपने पूरे हुए, क्या वो जुडिशरी बनी, क्या वो लेजिस्लेचर बना, क्या उनके सपने तो जाति विहीन समाज, वर्ण विहीन, जाति विहीन समाज बना? नहीं बनाना उसको। तो आज उनके बारे में मैं वो क्यों अम्बेडकर बने वो थोड़ा रखना चाहता हूँ। जैसे नाई ने उनके बाल नहीं काटे, देखिए मतलब अत्याचार, नाई ने उनके बाल नहीं काटे, गाड़ी वाले ने गाड़ी पर नहीं बिठाया, पानी वाले ने पानी पीने को नहीं दिया, मंदिरों में घुसने नहीं दिया, तालाबों में पानी पीने को नहीं दिया, होटल में कमरा नहीं दिया, पादरी नाम बदल के रहना पड़ा होटल में, होटल वाले ने कमरा नहीं दिया, ये तो झूठ है। सड़क पर चलने नहीं दिया, शिक्षा के द्वार बंद कर दिए। तो उन ऐसे, उसके बाद भी वो पढ़े LLB, D.Litt, बार, कितनी धोती PhD, इतने हमको लगता है कि आज तक उनसे बड़ा पढ़ा लिखा आदमी कोई नहीं है हमारे देश में, इतने पढ़े लिखे बाबा साहब के। इसलिए उनको ड्राफ्टिंग कमेटी का, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया।
तो साथियों ये उस वजह से वो अम्बेडकर बने, उस वजह से वो ये जो अत्याचार हो रहे थे हमारे साथी खुद बता के गए हैं, जो दलित वर्ग के खिलाफ, जो छूत वर्ग के खिलाफ, जो शूद्र वर्ग के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे थे, सामाजिक अत्याचार, आर्थिक अत्याचार, राजनीतिक अत्याचार, उनकी वजह से उनको देखा उन्होंने, भुगता और उनकी वजह से वो अम्बेडकर बने। अगला क्या है, उन्होंने क्या किया, देखिए क्या किया उन्होंने, हमको क्या करने की जरूरत है। उन्होंने क्या किया, वाणी दी, बेजुबानों को वाणी दी, नारे दिए, लड़ना सिखाया, संघर्ष करना सिखाया, कॉलेज खोले, अखबार निकाले, अभी पहले बात है, लेखन किया, किताबें लिखी, उच्च ज्ञान प्राप्त किया, विदेशों में गए ज्ञान प्राप्त करने के लिए, जनता को जगाया, दलित जनता को जगाया, जब उसको जगाने की कोशिश की, जनता को जगाया, खतरे मोल लिए, पिटे छिटे, उन पर हमले हुए और तर्क करना सिखाया। उन्होंने कहा हम जो बात कह रहे हो, जो लिखा हुआ धर्मशास्त्रों में हम नहीं मानते, हमें तर्क पे बात, हमारी वैज्ञानिकता से हमारी बात को बताओ कि भगवान ने वो सर से ब्राह्मण पैदा कर दिया, छाती से वो क्षत्रिय वो कर दिया, धड़ से ये कर दिया, पैरों से वो कर दिया, पैरों से शूद्र पैदा कर दिए। अरे भाई ऐसे कोई आदमी पैदा होता है? आप क्या बता रहे हैं हमको? वैज्ञानिक दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से ये गलत है, ये नहीं होता है। उन्होंने उसका विरोध किया और हमको विरोध करना सिखाया। उन्होंने शिक्षा प्रचार का प्रसार किया, मनु की कबर खोदी, मनुवाद की कबर खोदी। मनुवाद में आपसे कहता हूं कि मनु स्मृति आपको पढ़नी चाहिए, वकील है। जब ये संविधान बन रहा था उस समय के कुछ लोगों ने कहा था नहीं हमें संविधान की जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ तो मनुस्मृति है, हमें कोई जरूरत नहीं है मनुस्मृति की और संविधान की। तो उन्होंने संविधान का विरोध किया था, जो आज सत्ता में बैठे। तो मेरे साथियों आपको मनुस्मृति जरूर पढ़नी चाहिए। आज मेरे साथी नाथीराम सिंह मेरे से कह रहे थे कि हमको एक एक किताब वो मनुस्मृति बांटनी चाहिए। तो साथियों इस बार तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगली बार हम कोशिश करेंगे कि आपको सबको जो है आएंगे उनको एक एक मनुस्मृति जरूर दें, पढ़े मनुस्मृति को, जाने क्या लिखा उसमें। और सबसे ज्यादा सर्विक एकता के हामी थे। उन्होंने जिस बात पे जोर लगाया सबसे ज्यादा, उन्होंने कहा सारे मजदूरों एक हो। कार्ल मार्क्स ने सबसे पहले कहा था दुनिया भर के मजदूरों एक हो। उन्होंने कहा भारत भर के मजदूरों एक हो। कोई श्रेणी नहीं है, कोई जाति नहीं है, कोई वर्ग नहीं है, कोई वर्ण नहीं है, हम एक वर्ग है, मजदूर वर्ग। वो वर्ग के साथी बनो, एकता बनो, सब लोग एकता करो। आगे नारे देती है, नारे शिक्षित बनो, जो नारे अम्बेडकर साहब ने दिए। संगठित हो, संघर्ष करो, प्रचारक बनो और आशावादी बनो। तो साथियों आज प्रचारक बनने की भी जरूरत है। अगर आप इस संविधान के बारे में, संविधान से मनुस्मृति के बारे में, कार्ल मार्क्स के बारे में, भगत सिंह के बारे में, अम्बेडकर के बारे में, बुद्ध के बारे में प्रचार प्रसार नहीं करोगे, हमारे साथ जो जातीय अन्याय हो रहे हैं उसके बारे में प्रचार प्रसार नहीं करोगे, प्रचारक नहीं बनोगे, तो अम्बेडकर के सपने पूरे नहीं हो सकते, अम्बेडकर का समाज नहीं बन सकता। इसलिए सबको अम्बेडकर की किताबें पढ़नी चाहिए, बुद्ध की किताबें पढ़नी चाहिए, मार्क्स की किताबें पढ़नी चाहिए, भगत सिंह को पढ़ना चाहिए, तभी हम एक संपूर्ण मनुष्य बन सकते हैं। इनके बिना हम एक संपूर्ण मानव नहीं बन सकते। ये अम्बेडकर जी कहते हैं और हम कहते हैं। अगले आगे कहते हैं, देखिए बड़े लेखक थे, जब मैं कुछ किताबें उन्होंने लिखी हैं बहुत सारी, लेकिन उनमें से कुछ ये हैं, शूद्र कौन है शूद्र। अगला जाति विनाश, एक बहुत बढ़िया किताब है जाति विनाश, सबको पढ़ना चाहिए। जाति विनाश, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। आगे है हिंदुत्व की पहेलियां, बहुत बढ़िया किताब मैंने पढ़ा। हिंदुत्व की पहेलियां किस तरह से नचाता है हमको, किस तरह से गुमराह करता है धर्म। और आगे भारत की जातियों की समस्या, आगे है खेती बाड़ी की समस्या, आगे है रुपए की समस्या, जिसे जो रिजर्व बैंक की स्थापना उनके प्रचार प्रसार पे हुई थी 1935 में। आगे है पाकिस्तान का विचार और कांग्रेस ने सूदों के लिए क्या किया। ये अब उनके विचार क्या थे साथियों? उन्होंने कहा भारतीय जनता के दो दुश्मन हैं, नंबर 1 पूंजीवाद, नंबर 2 मनुवाद। आज ये बात उन्होंने अब से 70-80 साल पहले कही थी, आज ये बात बिल्कुल सही साबित हो रही। पूंजीवाद जनता का लूटने वाला समाज बन गया है, किसानों मजदूरों के लूटने वाला समाज बन गया है और चंद लोगों की पूंजी बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। देख रहे हो क्या हो रहा है। अडानी की संपत्ति पिछले दो साल में 8 गुनी बढ़ गई है। दुनिया के 10 सबसे बड़े अमीरों में वह शामिल हो गया, आज की खबर है। तो 80% जो 85% परिवार है उनकी इनकम घट गई है। ये कौन सा विकास है? कौन सा विकास है? उन्होंने कहा था असमानता का खत्म होना चाहिए। जब तक राजनीतिक समानता तो मिल गई,
हम वोट दे सकते हैं, एमएलए एमपी चुन सकते हैं, लेकिन जब तक आर्थिक समानता संपन्नता नहीं होगी हम वहीं के वहीं रहेंगे। ये बात बिल्कुल सही है। आगे वो कहते हैं बंधुत्व के बिना प्रजातंत्र, गणतंत्र, समता, समानता, न्याय सब अधूरे हैं। अगर हमारे बीच में भावना, भाईचारा नहीं है, आज भी हम जातियों में बटे हैं, धर्मवाद में बटे हैं, जातियों में भी जातियों में बटे हुए हैं, अछूत में बने हुए। जो सारा काम करता है दुनिया को सजाता संवारता है वो छूत है। कैसी गजब की बात है कि जो मूत्र को साफ करता है वो तो छूत, और जो मूत्र को पीता है वो पूजनीय। ये है हमारी मानता। ये मानता नहीं चलेगी, ये मानसिकता नहीं चलेगी। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा। आगे वो कहते हैं साथियों, क्योंकि वो उधर से टाइमर काम कर रहा है अपना, 2 मिनट लेता हूँ, 2 मिनट में। वो क्या चाहते थे बिल्कुल संक्षेप। समता, समानता, बंधुत्व, प्रजातंत्र, गणतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, जाति का खात्मा, अस्पृश्यता का खात्मा, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक आजादी, ये चाहते थे। ये भी पूरे नहीं हुए हैं साथियों। समता, समानता, जिसका हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जिनकी बात करता है, वो पूरा नहीं हुआ। वो चाहते थे, वो बातें उन्होंने उसमें रखी संविधान में। वो संविधान आज लगभग फेल है। और मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं कि आज अम्बेडकर के विचारों की, उनके सिद्धांतों की आज हत्या की जा रही है। अम्बेडकर के विचारों का भारत नहीं है, अम्बेडकर के सपनों का भारत नहीं है। आज बिल्कुल धनियों का, ये धनपतियों का भारत बन गया है। आगे वो कहते हैं कहाँ के हामी थे, कहाँ चीज तो क्या कहते थे, कहाँ के हामी थे। वो थे समरसता हो समाज में, वो कहते थे भाईचारा हो समाज में, वो कहते थे आजादी हो, वो कहते हो जातीय एकता हो, जातीय अखंडता नहीं, जाति नहीं, जातियों में भी जाति नहीं, जातीय एकता, हम सब मनुष्य हैं, मनुष्य बराबर। वो कहते थे जातिवाद का खात्मा। और वो कहते थे समानता के, श्रमिक एकता के हामी, कि जब तक श्रमिक एक होकर नहीं लड़ेंगे इस देश की समस्याओं का, किसानों का, मजदूरों का समस्याओं का हल नहीं हो सकता। ये अम्बेडकर ने तब कहा था, और ये बात आज भी उतनी सही। और साथियों एक बात बहुत अंतिम, बहुत इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ कि संविधान ने एक सपना देखा था कि हमारे संविधान का शासन कैसा होगा, हमारे रूल ऑफ लॉ कैसा होगा। आज हम वकील हैं, जुडिशरी की हालत देखिए, हमारे सारे वकील बैठे हैं। आज हमारी जुडिशरी में 4 करोड़ 70 लाख मुकदमे पेंडिंग हैं। 4,70 करोड़। जो लोअर कोर्ट है 4 करोड़ 10 लाख मुकदमे पेंडिंग है। जो हमारी 25 हाई कोर्ट है उनमें 58 लाख मुकदमे पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट में 70,000 मुकदमे पेंडिंग है। अभी हमारे सारे वकील हम देख रहे हैं, बाबू नहीं है। लोअर कोर्ट में 25% जुडिशरी के पद खाली पड़े हैं। हाई कोर्ट में पिछले 25 सालों से, 40 साल से पद खाली पड़े हैं, कोई नहीं भर रहा है। और लोअर जुडिशरी जो क्लर्क हैं, यहाँ तो 80-90% बाबू ही नहीं है। आप देख रहे हैं किनसे अधीर रख रखे हैं। जितने चीफ जस्टिस आते हैं, जितने इंस्पेक्टिंग जज आते हैं, हम लोगों ने उनको ज्ञापन देने के बाद बताइए सब हालत होती है। अगर आज अधीर ना हो तो हमारी जुडिशरी में काम नहीं हो सकता। और सरकार सुन नहीं रही है, न्याय सरकार के एजेंडे में नहीं है। तो साथियों ये समझो, आज हम जो है ये संविधान, ये बाबा साहब के सपनों का भारत नहीं है। संविधान पे हमला हो रहा है। सब भारत, बाबा साहब के जो सपने थे, जो विचार थे, जो उनकी प्रतिज्ञा थी, जो सिद्धांत थे, जो उनके विचार ख्यालात थे, उन पर हमला हो रहा है। और उसको एक भारत जैसा 1947 से पहले भारत था, अधिकार विहीन, किसान को कोई अधिकार नहीं, मजदूरों को कोई अधिकार नहीं। अभी आपने देखा किसानों ने लड़के वो 4 कानून वापस कराए हैं। और एकता, अम्बेडकर ने कहा था एक हो, वो एकता का परिणाम। और अभी सरकार 4 संविधाएं ला रही है, गुलामी बना रही है मजदूरों को। परमानेंट नौकरी खत्म, पेंशन खत्म, ठेकेदारी पे काम होगा, गुलाम बना रही है, कोई श्रम कानून नहीं होगा। तो ये ऐसे भारत का सपना उन्होंने नहीं देखा था, ऐसे कानून के राज का सपना उन्होंने नहीं देखा था। तो ये उनके सपनों का भारत नहीं है। तो साथियों, उनके सपनों का भारत बनाने के लिए हमें भारत में संविधान को मजबूत करना पड़ेगा, कानून के शासन को मजबूत करना पड़ेगा, समता और समानता का साम्राज्य कायम करना पड़ेगा, हिंदू मुसलमान की बात छोड़ के भाईचारा कायम करना पड़ेगा। साथियों, इन्हीं के साथ मैं 2 लाइनों में अपनी बात खत्म करता हूँ कि शाह रात में रोशन किताब छोड़ गया, वो चला गया मगर अपनी ख्वाब छोड़ गया। 1000 जब रो, लेकिन ये फैसला है अटल, वो जहन में इनकलाब छोड़ गया। इनकलाब जिंदाबाद।